राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया की यात्रा पर हैं। उन्होंने आज अल्जियर्स में सिदी अब्देला विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोल का दौरा किया, जो कि विश्वविद्यालय का केंद्र है। यहाँ उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ये व्यक्तिगत उनका नहीं बल्कि पूरे भारत का सम्मान है। राष्ट्रपति ने इस मौके पर गांव से निकलकर देश की राष्ट्रपति बनने तक के सफर का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने भारत में शिक्षा समेत हर क्षेत्र में हो रही प्रगति के बारे में भी बात की। एक की पिलर ऑफ इंडिया's rapid economic recovery is technology-led and women-led growth. The massive digital transformation taking place in India, never seen anywhere in the world stage, has encouraged the participation of women in the workforce. There are about 36% of women out of 4.4 million professionals working in our IT sector. The benefits of technology-based financial inclusion has also gone in a large measure to the women in rural areas. I am happy to note that Algeria is keen to promote dialogue with India on digitalization of their retail payment system. We have also made progress in the space exploration and science and technology sector. Our Gaganyaan mission, planned to be launched next year, will a team of Indian astronauts in the space abroad, in India's first human space flight. Friends, education is undoubtedly the most impactful mechanism for human development, social upliftment, and economic development. It brings equality and neutralizes societal inequalities, ensuring that the benefits of growth reach even the most marginalized. Education is a means not only for individual empowerment but for national development as well. In recent years, India has made considerable progress in the field of education. Our literacy rates has gone up significantly. India has one of the world's largest higher education systems with over 58,000 higher education institutions and more than 43 million students enrolled for higher education. Over the past decade alone, we have created nearly 400 new universities, 5,300 new colleges, 75 new institutions of national importance, 14 new All India Institution of Medical Sciences, 7 new Indian Institutes of Technologies, and 7 new Indian Institutes of Management. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज देश में जनसांख्यिकी अव्यवस्था के बढ़ते खतरे पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी विकार के परिणाम परमाणु बम से कम गंभीर नहीं हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। फ्रेंड्स, I will be availing this opportunity because I take you to be beyond chartered accountants. I take you as very responsible citizens of this great nation. And India, Bharat, is a stabilizing global force. This force has to emerge. This century has to belong to Bharat. And that will be good for humanity. That will contribute to peace and harmony on the planet. And therefore, it will be national disservice of extremity if we turn Nelson's eye to the dangers of demographic upheavals that are taking place in this country. Organic, natural demographic change is never upsetting.
but a demographic change brought about in a strategic manner to achieve an object offers a scene that is frightening. Analyzing this menacing development over the last few decades will turn out to be an eye-opener. Take any state and you will find demographic change has a pattern. That pattern offers a challenge to our values, to our civilizational ethos, to our democracy. If this challenge, which is alarmingly worrisome, is not addressed in a systemic manner, it will graduate to existential challenge. It has happened in the world. I need not name countries that have lost their identity 100% because of this demographic disorder. भारत की तीव्र वृद्धि और विकास पर चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारी विकास यात्रा दुनिया को आश्चर्यचकित कर रही है। साथ ही उन्होंने राष्ट्र विरोधी ताकतों से सचेत रहने का आह्वान किया, जो कि देश की आर्थिक वृद्धि के लिए खतरा हो सकती है। The greatest challenge I must advert to, a challenge that is growing day by day. The challenge has taken menacing proportions. It is alarmingly worrisome, and that is narratives and efforts are afoot to upset our social cohesion. We therefore all have to work with passion and in missionary mode to build a cohesive society that thinks in nationalistic terms and is not ridden by factions of caste, creed, color, culture, conviction, and cuisines. We are all absorbing. Let me describe the scene. We as a majority are all embracing. We as a majority are tolerant. We as a majority generate soothing ecosystem. And we have a counterpoint writing on the wall. The other kind of majority that is brute, ruthless, reckless in its functioning, believes in trampling all values of the other side. The difference has to be noticed. We will have to leave behind the narrow parochial divisions. A citizen with nationalistic outlook will have no difficulty in embracing diversity. He or she celebrates this country's glorious past regardless of his or her faith, because that is our shared cultural heritage. हमारे शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज पर कुठाराघात हो रहा है, उसको हमारी कमजोरी बताने का प्रयास हो रहा है। उसके तहत देश को ध्वंस करने की योजना बनी हुई है। ऐसी ताकतों पर वैचारिक और मानसिक प्रतिघात होना चाहिए। एंड द पीपल बिफोर मी are nerve center and epicenter of this wholesome narrative. पूरी दुनिया तेजी से बदल रही है। हर दशक कुछ नई तकनीक के साथ आ रहा है, बल्कि यूं कहें कि हर वक्त हर कदम तकनीक में कुछ नया देखने को मिल रहा है। इस बदलते वक्त के साथ भारत कदम ताल कर रहा है। आज के भारत की नज़र कल के भविष्य पर है, मानवता के कल्याण पर है। जिस तरह तकनीक की कोई सीमा नहीं है, उसी तरह भारत भी तकनीक को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रख रहा, अगली पीढ़ी
टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी। यही तकनीक मानव के भविष्य की दशा और दिशा करने का काम करेगी। इसलिए इन नई तकनीकों का स्टैंडर्ड या मानक तय होना जरूरी है, जिससे ये सही दिशा में आगे बढ़े और सभी के लिए उपयोगी और सुलभ हो। इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए विश्व दूरसंचार मानक सम्मेलन 2024 और 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का 15 अक्टूबर को उद्घाटन दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि आज भारत टेलीकॉम और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के सबसे ज्यादा सक्रिय देशों में से एक है। ऐसे में यहाँ ये सम्मेलन वैश्विक दूरसंचार की स्थिति और भविष्य पर चर्चा भी वैश्विक भलाई का माध्यम बनेगी। WTSA और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का एक साथ होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। WTSA का लक्ष्य ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर काम करना है, वहीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस की बड़ी भूमिका सर्विसेज के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए आज का ये आयोजन स्टैंडर्ड्स और सर्विसेज दोनों को एक ही मंच पर ले आया है। आज भारत क्वालिटी सर्विस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। हम अपने स्टैंडर्ड्स पर भी विशेष बल दे रहे हैं। ऐसे में WTSA का अनुभव भारत को एक नई ऊर्जा देने वाला होगा। साथियों, WTSA पूरी दुनिया को कंसेंसस के जरिए एम्पावर करने की बात करता है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस पूरी दुनिया को कनेक्टिविटी के जरिए सशक्त करने की बात करती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने भारत के भाव को सबके बीच रखा। उन्होंने कहा कि भारत ने डिजिटल प्रौद्योगिकी का लोकतांत्रिकरण किया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में दूरसंचार को न केवल कनेक्टिविटी का माध्यम बनाया गया है, बल्कि इसे समानता और समान अवसर का माध्यम भी बनाया है। जब लोकल और ग्लोबल का मेल होता है, तब न केवल एक देश बल्कि पूरी दुनिया को इसका लाभ मिलता है, और यही हमारा लक्ष्य है। फ्रेंड, 21वीं सदी में भारत की मोबाइल और टेलीकॉम यात्रा पूरे विश्व के लिए स्टडी का विषय है। दुनिया में मोबाइल और टेलीकॉम को एक सुविधा के रूप में देखा गया, लेकिन भारत का मॉडल कुछ अलग रहा है। भारत में हमने टेलीकॉम को सिर्फ कनेक्टिविटी का नहीं, बल्कि इक्विटी और अपॉर्चुनिटी का माध्यम बनाया। ये माध्यम आज गांव और शहर, अमीर और गरीब के बीच की दूरी को मिटाने में मदद कर रहा है। आज भारत के पास ऐसा डिजिटल गुलदस्ता है जो कल्याणकारी योजनाओं को दुनिया में नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। भारत प्रौद्योगिकी क्षेत्र को समावेशी बनाने, प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है। आज भारत के पास एक ऐसा डिजिटल बुके है जो दुनिया में वेलफेयर स्कीम्स को एक नई ऊंचाई दे सकता है। इसलिए G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया, और आज मैं फिर दोहराऊंगा, भारत को DPI से संबंधित अपना अनुभव और जानकारी सभी देशों के साथ शेयर करने में खुशी होगी। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के उद्घाटन से पहले
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीकॉम और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी से जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। प्रदर्शनी में प्रदर्शित विभिन्न उपकरणों, तकनीकों और स्टार्टअप से जुड़े लोगों ने प्रधानमंत्री को अपने उत्पादों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।